General Kurilla, you talked about ISIS-K in Afghanistan in your opening statement. I'd like a little deep dive, if you don't mind. Sure. ISIS Khorasan, perhaps one of the most active in trying to do external plots globally, to include against the homeland, through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, "I've caught him. I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President." So we are seeing Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that. And we're seeing an effect on ISIS Khorasan. At the same point, they are continuing to move around. Sometimes they'll try and go back into Afghanistan. We have the means to be able to collect, but for the most part right now, they're hanging out right in that border area of Pakistan. And I would also tell you that, since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. Does it seem like they're scaling down or scaling up? So I think from ISIS Khorasan, they got hit very, very hard over the last several months. And so I would tell you right now, they're at a low point right now. What we're getting out of interrogation and exploitation has been significant. We have to have a relationship with Pakistan and with India. I do not believe it is a binary switch, that we can't have one with Pakistan if we have a relationship with India. We should look at the merits of the relationship for the positives that it has. नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। शदीद गर्मी है, अपना ख्याल कीजिए, डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल कीजिए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, और जब गर्मी में बाहर निकलें तो सर पर कोई कपड़ा गीला करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई कपड़ा ज़रूर रखें। सर को धूप के सामने जो है ना वो बिल्कुल एक्सपोज ना करें, ख़ास तौर पर अगर आपके बाल मेरे जैसे हों। चलिए अब आज के व्लॉग की जानिब आते हैं। आपको पहले रनडाउन बता देते हैं। नाज़रीन, पहले तो एक वीडियो आपने अभी देखी, और ये माइकल कुराला हैं, सेंटकॉम चीफ हैं। इन्होंने सेनेट कमेटी में ये इनकी टेस्टिमनी थी, वहाँ इन्होंने ये बताया है। और जो मौजू है हमारा, वो दुनिया में और ख़ित्ते में हालात भी तब्दील हो रहे हैं और अलाइनमेंट्स भी चेंज हो रही हैं। किस तरह भारत नाकाम हो रहा है, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा, दफ्तर ख़ारजा ने उसके जवाब में क्या कहा, ये तो हम बताएंगे आपको। लेकिन इसके नतीजे में हो क्या रहा है, और ज़ल्मे खलीलज़ाद क्या कह रहे हैं। ज़माने में वो बहुत पाकिस्तान मुखालिफ थे, अभी थोड़े दिन पहले तक पाकिस्तान के हवाले से शदीद किस्म के ट्वीट्स करते रहे। आज भी उन्होंने किया, लेकिन अब वो उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद यूथी उनको पड़ गए। वो PTI वाले, माफ़ कीजिएगा, मैं इस किस्म के अल्फाज बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। उनका एक ट्वीट था, उसके बाद वो पीछे पड़ गए। क्या कहा? उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को भी गालियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं PTI की जानिब से, और मोहम्मद बिन सलमान को भी। तो क्या कहा जा रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ आपको ये बताएंगे कि जो सजाद बर्की हैं, PTI वाले, इमरान खान के कज़न भी हैं, उन्होंने अमेरिका में एक एहतजाज का ऐलान किया। किसकी आमद पर किया, ये भी बताएंगे। और उसके नतीजे में उस एहतजाज को किसकी पुष्टपनाही हासिल है, इसकी तस्दीक किसने की, ये बताएंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि उस एहतजाज के हवाले से अलीमा खान क्या कहती हैं, और गौहर जो है बैरिस्टर गौहर, वो कहाँ खड़े हैं। और फिर आज पाकिस्तान में होने वाले एहतजाज के हवाले से अली बिन गंडापुर और अलीमा खान एक दूसरे के साथ खड़े होकर आमने सामने आ गए। तो इन चीज़ों पर आज नाज़रीन आज बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है। अब आपने रनडाउन सुन लिया तो व्लॉग की जानिब आ जाते हैं। नाज़रीन, ये अभी आपने जो वीडियो देखी, 1 मिनट 56 सेकंड की गालबन वीडियो है, या 50 सेकंड की। जनरल माइकल कुराला हैं, ये सेंटकॉम चीफ, इन्होंने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान गैर मामूली कामयाबी हासिल कर रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। 700 के करीब जो है वो पाकिस्तानी शहरियों और जवानों ने जो है शहादतें दी है, ये उन्होंने भी तस्लीम किया। लेकिन 1000 सिग्निफिकेंट दहशतगर्द मारे गए हैं।
ये भी इन्होंने बताया। ख़ास तौर पर इन्होंने ये बताया कि दाइश और खुरासान जो है वो पाकिस्तान अपने इंटेलिजेंस ज़राए से भी, और उनका ये भी तस्लीम करना था कि हमने बहुत कम मालूमात शेयर की, लेकिन मालूमात शेयरिंग की बुनियाद पर यह हुई। और पाकिस्तान ने अपने ज़राए से भी दाइश और खुरासान और जो दीगर तंजीमें हैं जिनमें TTP भी है और उसमें ये PLA वगैरह भी है, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। फिर साथ साथ उन्होंने बताया कि वो अबे वो जो अटैक था उसके हवाले से कि वो जाफ़र उसका जो था मास्टरमाइंड, उसको गिरफ्तार कराया, लेकिन जो लोग मारे गए हैं उनमें 5 अहम तरीन दहशतगर्द भी शामिल हैं, जो इम्पोर्टेंट कमांडर्स हैं। तो पाकिस्तान को वो यह करार दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने हैरत अंगेज़ कामयाबी भी हासिल की, लेकिन पाकिस्तान काबिल फ़ख्र तादी के तौर पर भी सामने आ रहा है। उन्होंने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान के साथ जो पार्टनरशिप थी, जो ताल्लुकात थे, वो अब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो गए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि जब से हमने ये देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, एक तो हालात भी तब्दील हो रहे हैं, लेकिन जो PTI के लोगों की तवक्को थी वो ये कहते हैं कि PTI के वोट से वो जीते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव ज़रा, चूँकि उनकी सारी टीम या भारत नवाज है या इसराइल नवाज है। JD वैंस जब पहलगाम वाक़या हुआ तो JD वैंस तो भारत में थे, उनकी बहलियाँ भारतीय हैं, और वो अभी कुछ भारत नवाज दिखाई देते हैं। और जब भारतीय वफ्द गया तो उसकी एक ही सिग्निफिकेंट मुलाकात हुई, वो इनसे सिग्निफिकेंट इसलिए कि मामला साजी में या फैसला साजी में JD वैंस का रोल उस तरह का नहीं है, वो नायब सदर है, लेकिन उनका रोल है, जो अमेरिका में थिंक टैंक्स हैं उनका रोल है। पाकिस्तानी वफ्द ने ज़्यादा थिंक टैंक्स को फोकस किया, और कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को फोकस किया, और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया उनसे भी मुलाकात की। तो ये बड़ा एक डिफरेंस दिखाई देता है, क्योंकि इसके नतीजे में खित्ते के अंदर भी जो है ना वो रीअलाइनमेंट्स हो रही है। अभी पिछले दिनों गलबन 4 मई, मुझे याद है, असद आसिफ अली जरदारी रूसी सफारत खाने की तकरीब में गए थे। रूस का यौम आज़ादी है, जो आफ्टर ग्लासnost जो है वो जिसको कहा जाता है ना, जिसके नतीजे में रूस टुकड़े टुकड़े हुआ, उसमें भी उसकी भी अपनी एक तारीख है, लेकिन उसके बाद से रूस का जो है ये यौम आज़ादी कहा जा रहा है, 28वां यौम आज़ादी या रशियन डे। और फिर उसमें सदर जरदारी की शिरकत जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ फिर उनकी उसी नेशनल डे की तकरीब हुई मैरियट में, मकामी 5 स्टार होटल में, तो उसमें भी उन्होंने शिरकत किया। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान जो है वो जो है उसके पास जो बैलेंस है खत्े का, वो इट हैंग्स इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका जो है वो अब एक ज़माने में भारत को तरजीह दे रहा था, लेकिन अब उसकी तरजीह पाकिस्तान हो गई है। अमेरिकी जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान हैं, उन्होंने उन्होंने ये कहा है कि सदर ट्रंप जो है वो, बल्कि माफ़ कीजिएगा, वाइट हाउस के तर्जुमान, उन्होंने ये कहा कि सदर ट्रंप मसला कश्मीर में दिलचस्पी रखते हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को मैनेज भी करना चाहते हैं। इस दरमियान में जयशंकर जो है उनका ये वो ब्रसल्स पहुंचे थे। आज पाकिस्तानी डेलीगेशन ब्रसल्स पहुंचा है, कल वो ब्रसल्स से गए। उन्होंने ब्रसल्स में कुछ मीडिया से बात की, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में डीप डाउन हम जो है वो अटैक करने के लिए तैयार हैं। दफ्तर खारजा ने उसका बड़ा ही मुनासिब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप जैसे लेवल के सफारतकार की ज़बान जो है वो लड़ाकों वाली नहीं होनी चाहिए, जो लड़ाका ख़वातीन होती हैं या लड़ाका मर्द होते हैं, इन जैसी नहीं होनी चाहिए। ये आपको संजीदा गुफ्तगू करना चाहिए, और सफारतकार जो वो हमेशा अमन की बात करता है, पीस की बात करता है, ट्रंक्विलिटी की बात करता है, हार्मनी की बात करता है। और फिर पाकिस्तान ने एविडेंस के साथ ये साबित भी किया कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है, और अब तो पाकिस्तान को भी साबित करने की जरूरत है। खुद अमरीकी अदालत में CIA की रिपोर्ट पड़ी है, कनाडा की पार्लियामेंट उनको भारत को दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुकी है, कैनेडियन पार्लियामेंट के सिखों के कत्ल में मुलव्वस है भारतीय वज़ीर आज़म भी और रॉ भी, और 5 आइज़ की रिपोर्ट भी पड़ी हुई है। तो ये सारा ये बताता है कि खिते में भी रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, और इस रीअलाइनमेंट के दौरान में ज़ुल्म खलीलजाद का एक ट्वीट आया। वो पहले तो पाकिस्तान मुखालिफ थे, लेकिन वो ट्वीट उनका 2 रोज़ पहले बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्वीट है। उन्होंने ये इंकशाफ किया। हाँ, और अभी उस हवाले से मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन जो ज़ुल्म खलीलजाद का ट्वीट है उस हवाले से बात करूँगा कि उन्होंने ये कहा कि जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो आ रहे हैं अमेरिका,
उन्होंने कोई तारीख नहीं दी और उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बात करेंगे, सिक्योरिटी डोमेन पर बात करेंगे, उसके अलावा जो दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन है उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन साथ उन्होंने एक बड़े फ़िकाहिया से अंदाज में, बड़े दानिशवराना से अंदाज में ये भी कहा कि ही कैन ऑफर mediation between China and the United States as it was done in the Nixon days। यानी जब सदर निक्सन थे उस वक्त पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका को करीब लाने में किरदार अदा किया था, ब्रेक थ्रू कराया था। तो ये कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर उस तरह का ब्रेक थ्रू करा सकते हैं। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इस वक्त पोजीशन, और ये पोजीशन आई है ये जो 9 मई को पाकिस्तान ने जिससे भारत को बेबस करके शिकस्त फाइश से 2-4 किया, 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारत के जो रफ़ाइल तैयारे गिराए और उस समेत 7 तैयारे गिराए, उसके नतीजे में ये सामने आया। पाकिस्तान इस वक्त विक्ट्री पोजीशन में है और तमाम हालात तब्दील हो रहे हैं। तो इसकी अब रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। आप देखिए कि सदर ज़रदारी की रशियन सफारत खाने 2 दफ़े जाना और फिर वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का दौरा करके आना। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो ट्रंप के एक तरह से पार्टनर हैं, बहुत करीब हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो खित्ते के जो 2 बड़े ब्लॉक्स हैं एक तरह से, उनके दरमियान एक पुल का किरदार भी अदा कर सकता है। और यही मेंशन किया है ज़ल्मे खलीलज़ाद ने। मैंने बहुत पहले भी, शायद 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जब अमेरिकन इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद उनके नताइज पर बात की थी, तो उस वक्त भी मेरी ये असर्शन थी कि पाकिस्तान जो है वो रोल प्ले करेगा। पाकिस्तान का अपना रोल है और वो प्ले करेगा, और वो यही रोल है जो अब ज़ल्मे खलीलज़ाद ने किया। लेकिन इस तबसरे के बाद वो बेचारे PTI की शदीद तनकीद की जद में आ गए हैं, क्योंकि अब वो PTI के लोग एक ट्वीट में एक साहब ने जो बैरून मुल्क होते हैं और बड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू भी करते हैं, अब उन्होंने ये फरमा दिया कि जी वो ट्रंप ने तो हमें धोखा दिया था। PTI पूरी ये कह रही है कि ट्रंप PTI के वोटों से जो है मुंतखब हुआ, लेकिन वो धोखा दे दिया उसने और अब तरजीहात बदल गई हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि जी अब अमेरिका की तरजीहात बदल गई हैं, अब अमेरिका अलाइनमेंट कर रहा है पाकिस्तान के साथ। इस तनाजुर में आप ये देखिए कि जो महमूद अब्बास हैं उन्होंने भी लेटर लिखा है, उन्होंने एक हल की तजवीज़ किया है गज़ा की सूरत हाल का, उसमें भी पाकिस्तान का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यूँ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है जो जिसकी वजह से अमेरिका को पाकिस्तान के साथ जाना ही जाना है। और ये और फिर पाकिस्तान और अगर चीन के साथ अमेरिका के दरमियान कोई अगर करवा सकता है पैचअप और ब्रेक थ्रू करवा सकता है, तो ये दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा होगा। उस वक्त भी जब कोल्ड वॉर एरा था और उस वक्त चीन और अमेरिका के दरमियान जब ब्रेक थ्रू हुआ था, तो उस वक्त भी दुनिया को उसका फ़ायदा हुआ था। और फिर चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर और दीगर ममालिक के साथ मिलकर रूस और नेटो के दरमियान जो मामला है और फिर जो अमेरिका और रूस के दरमियान मामला है, उन सबको भी जो है वो मैनेज कर सकता है। तो इस तरह से दुनिया एक और नए जो है वो हालात से दो चार हो रही है। ये हालात कहाँ मुंतज होंगे, क्या क्या अलाइनमेंट्स होगी, ये कुछ दिन बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जब हमने बात की PTI के एहतजाज के ज़ुल्म खलीलज़ाद पर तनकीद की, तो उन्होंने चूँकि कहा कि जनरल आसिम मुनीर आ रहे हैं अमेरिका, उससे पहले एक ट्वीट किया, बल्कि सज्जाद बरकी जो उन्होंने ऐलान कर दिया अमेरिका में कि जनरल आसिम मुनीर आ रहे हैं और हम एहतजाज करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ ये सवाल हुआ, अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ एहतजाज करेंगे। जनरल आसिम मुनीर जो है वो हमने ISPR से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको ऑफिशियली उस हवाले से आगाह करेंगे। तो इसलिए उस हवाले से तो मैं कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब अडयाला जेल पर अलीमा खान पहुंची और उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया कि सज्जाद बरकी ने जो ऐलान किया है और वह फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ये ऐलान किया है एहतजाज का, तो ये क्या ये मुनासिब है? क्योंकि दुनिया भर में हमने ये देखा है कि अफवाज के सरबराहों के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं होता। अफवाज के सरबराहों के खिलाफ जो एहतजाज है वो सारी दुनिया में नापसंद भी किया जाता है और मुल्क से वो वफादारी भी तस्वुर नहीं होता। तो और फिर शहबाज गिल भी लगे हुए हैं उस पर, और भी शहजाद अकबर भी उस हक पे लगे हुए हैं, और पता नहीं और लोग भी लगे हुए हैं उस पर। अलीमा खान ने कहा, अलीमा खान ने बहुत बराह रास्त तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जो उनके जुमले थे उनका मतलब ये था कि इस एहतजाज को इमरान खान की बैकिंग हासिल है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ये इमरान खान ममनून मुल्क भी एहतजाज की कॉल दे चुके हैं
और फिर वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ जो है वो पिछले दिनों से बहुत सारी गुफ्तगू भी कर रहे हैं, नाम लिए बगैर, अफवाज पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तनकीद भी कर रहे हैं, तो वो समझ भी आता है। और अब पीटीआई वाले ज़रा परेशान है इस हवाले से। आज जब सवाल हुआ बैरिस्टर गौहर से तो उन्होंने फौरी तौर पर तस्दीद कर दी और बैरिस्टर गौहर अब निशाना बन गए हैं। शहबाज गिल भी के पर निशाना है, शहजाद मिर्ज़ा का भी, अकबर का भी निशाना है, वो पीटीआई जो अमेरिका है उसका भी निशाना है, वक़ार मलिक है कोई, उसके अलावा सनम जावेद की बहन है फ़रक जावेद, और इस तरह के लोग हैं उनका वो निशाना बने हैं। वो कहते हैं हम तो एहतजाज करेंगे। वो एक बाबा कौड़ा है, पता नहीं वो कौन है। तो ये इस तरह से जो है वो ये हो रहा है। इस दरमियान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, दिलचस्प डेवलपमेंट है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस के कमरे में दाखिल हो गए, तमाम लोग चले गए, चीफ मिनिस्टर भी और बाकी लोग भी, अलीमा खान वगैरह भी, और उनसे मांगी तो वो तोशा खाना 2 के, वो माफ़ कीजिएगा, 190 मिलियन केस जो है उसकी ज़मानत की दरख्वास्त और अपील, तो वो 26 जून तक चलेगी। उसके बाद मीडिया से जब गुफ्तगू हुई तो लेबिन गंडापुर ने कहा कि मैं तो चाहे सुरंग खोद कर आना पड़े, मैं इस्लामाबाद आऊँगा, हम असला लाएंगे, हम मुसल्ला होकर आएंगे, आप हम पर एक गोली चलाएंगे तो हम 2 गोलियाँ चलाएंगे। उन्होंने इस किस्म की बात की तो अलीमा खान ने कहा नहीं नहीं, कोई इस्लामाबाद नहीं आना, कोई गोलियाँ नहीं चलानी। इमरान खान ने तो कहा कि जहाँ हैं वहीं एहतजाज करें। तो अब अलीमा खान और जो हैं अली अमीन गंडापुर, ये भी एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे पर क्या किस किस्म के वार करते हैं और ये एहतजाज क्या रंग लाता है, या इस एहतजाज का नतीजा क्या निकलता है पीटीआई के लिए। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अमेरिका का एहतजाज तो गैर मौसम होगा और वो नताइज नहीं दे सकेगा। फिर पाकिस्तान के अंदर भी पीटीआई तकसीम है एहतजाज के हवाले से, और वो ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि हुकूमत को निशाना बनाएं, इसलिए कि आपका तो ताल्लुक हुकूमत से है ना, आपने हुकूमत से जो भी कंसेशन लेनी है, मुज़ाकरात उसी से करने हैं, जो भी होगी बात हुकूमत से होगी। ये आदमी भी वादे कर चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर DGI इस पर खुद वादे कर चुके हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।